ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 13 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు కదాచన. అర్జున, తే నీకు కర్మణ్యేవ అధికార, నీకు కర్మయందే అధికారం ఆస్తి కలదు. కదాచన, ఎప్పుడైనా అధికార ఫలేషు, ఫలమునందు అధికారం మా వలదు. అర్జున, నీకు కర్మయందే అధికారం కలదు, ఫలమునందు వలదు అన్నాడు. ఇక్కడ ఫలమునందు అధికారం లేదు అని చెప్పలేదు. ఫలమునందు అధికారం ఉన్నది. ఉండినప్పటికీ దానికి నీవు ఏమాత్రము అంగీకరించవద్దు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం. ఇక్కడ నఫలేషు అని చెప్పలేదు, మా ఫలేషు అనగా ఫలము లేదు అని చెప్పలేదు, ఫలం వలదు అన్నాడు. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हे अर्जुन, ते तुमको कर्मण्येव अधिकारः, कर्मों में ही अधिकार, अस्ति है, कदाचन कभी भी, अधिकारः फलेषु, फल में अधिकार, मां अपेक्षा मत करो. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं. यहाँ फल में अधिकार नहीं है ऐसा नहीं कहा, फल में अधिकार है. अधिकार के होने पर भी तुम उसकी अपेक्षा मत करो. यहाँ पर न फलेषु नहीं कहा गया है, मां फलेषु, फल नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि यह कहा कि फल की अपेक्षा मत करो. మనం ఆచరించేటువంటి సమస్త కర్మల యందు ఫలమును లక్ష్యమునందుంచుకొనక కర్మను ఆచరించటమే మన కర్తవ్యమని గుర్తించాలి. ప్రతి కర్మకు ఫలితం ఉన్నది, ప్రతి ఫలితమునకు మరొక కర్మ ఉన్నది. ఇది కేవలము విత్తనము మొక్క, విత్తనము మొక్క, విత్తనము మొక్క, ఈ పరిస్థితిలో రూపొందుతూ ఉంటుంటుంది కర్మ, కర్మఫలము. విత్తనము లేక మొక్క రాదు, మొక్క వృక్షము కాక విత్తనము లభించదు. ఇది సహజమైనటువంటి స్వభావము. దీని నిమిత్తమై నీవు ఫలితముని ఎందుకు నీవు లక్ష్యం నందుంచుకోవాలి? కర్మను ఆచరించడమే నీ ప్రధానమైన కర్తవ్యం. अतः हमें जानना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उनके फल को लक्ष्य में न रखते हुए कर्मों का आचरण करना ही हमारा कर्तव्य है. प्रत्येक कर्म का फल है, प्रत्येक फल के लिए एक कर्म है. यह केवल बीज और पौधा, बीज और पौधा, बीज और पौधा
इस प्रकार कर्म और उसका फल रूपायित होते रहते हैं। बिना बीज के पौधा नहीं होता है, पौधे के पेड़ न होकर बीज प्राप्त नहीं होता है। यह एक सहज स्वभाव है। इतने मात्र से तुम्हें फल को क्यों लक्ष्य में रखना चाहिए? कर्म का आचरण ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। ఈ యుద్ధమునందు నా వారు ఏమవుతారో, నా పరిస్థితి ఏ గతి పడుతుందో అనేటువంటి ఈ ఫలితమును నీవు లక్ష్యం నందుంచుకోవద్దు. యోధులు ధరించవలసినటువంటిది కవచం అనగా శత్రుసేనలు వేసేటువంటి బాధలకు దానిని సహించుకునేటువంటి యొక్క శక్తిని మనం కలిగి ఉంటుండాలి అని దీని అర్థం. శత్రుసేనలు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దీనినైనా కూడాను తమ పైన ప్రవేశపెట్టగలరు. ఈ భయంకరమైనటువంటి అస్త్రశస్త్రములకు గురి కాకుండా ఈ యోధుడు ఒక కవచమును ధరించాలి అన్నాడు. లౌకికమైన జగత్ సంబంధమైన ఈ యొక్క యుద్ధములకే మానవుడు కవచమును ధరిస్తున్నాడు. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక మార్గములో మానవుడు నిరంతరము పోరాడేటువంటి యొక్క పోరాటంలో వీడు కూడాను కొన్ని రకమైనటువంటి కవచమును ధరించవలసి వస్తుంది. ఇది జ్ఞాన కవచము, ఆధ్యాత్మిక కవచము. श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध में मेरे अपनों का क्या होगा, मेरी स्थिति कैसे परिणत होगी? इस प्रकार तुम फल को लक्ष्य में मत रखो। योद्धाओं को कवच धारण करना चाहिए, अर्थात शत्रु जिस भी शक्ति का प्रयोग करते हैं उसे सहने की शक्ति होनी चाहिए। यही इसका आंतरिक अर्थ है। शत्रु किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कहा गया है कि भयंकर शस्त्रास्त्रों का सामना करने के लिए योद्धा को कवच धारण करना चाहिए। लौकिक एवं जगत संबंधी इन युद्धों के लिए ही मानव कवच धारण कर रहा है। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी निरंतर किए जाने वाले संघर्षों में मानव को कुछ विशेष प्रकार के कवच धारण करने पड़ते हैं, जैसे ज्ञान कवच और आध्यात्मिक कवच। ఈ కవచములు యందు అనేక విధములైనటువంటి కవచములు కూడా ఉంటున్నాయి. ఈ భక్తి కవచము అనేటువంటి దానిని మనము అనేక విధములుగా కూడాను విచారించవలసి వస్తుంది. లోకములో జరిగేటువంటి యొక్క సంగ్రామమునకు ఏదో ఒక కాలము నియమితం ఉంటుంటుంది. కొన్ని దినములకు, కొన్ని నెలలకు, కొన్ని సంవత్సరములకు ఈ యొక్క పోరాటము నిలిచిపోతుంది. కానీ మానవుడు చేసేటువంటి పోరాటము ఏ అనాది కాలం నుంచినో వస్తున్నది. इन कवचों में भी अनेक प्रकार के कवच हैं। इनमें भक्ति कवच पर हमें कुछ विचार करना चाहिए। संसार में होने वाले संघर्ष के लिए कुछ समय होता है। यह संघर्ष कुछ दिनों अथवा कुछ महीनों अथवा कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है। मानव द्वारा किया जाने वाला संघर्ष अनादिकाल से चला आ रहा है। మంచి చెడ్డలతో, పాప పుణ్యములతో, రాగద్వేషములతో, అసూయాది భావములతో, మమత్వము అహంకారములతో మానవుడు అనాది కాలం నుండి పోరాటము సలుపుతూ వస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా అహంకార మమకారముల చేత పోరాటము నిర్విరామంగా జరుపుతున్నాడు. ఇవి మహా భయంకరమైనటువంటివి. ఈ శక్తులకు చాలా బలమైనటువంటి యొక్క శక్తి కలిగి ఉంటుండాలి. కానీ పోరాటం చేసేటువంటి మానవునకు, జీవునకు శక్తిహీనుడై ఉన్నాడు. ఇలాంటి బలహీనుడైనటువంటి జీవుడు బలమైనటువంటి గుణములతో పోరాటము సలిపేటువంటి సమయం లోపల ఒక జ్ఞాన కవచము, ఆధ్యాత్మిక కవచము లేక మరే విధమైనటువంటి వైరాగ్య కవచమును ధరించవలసి వస్తుంది. अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, राग और द्वेष, ईर्ष्यादि भावनाओं, ममत्व और अहंकार आदि से मानव अनादिकाल से संघर्ष करता आ रहा है। विशेषतः वह अहंकार और ममत्व से अविराम संघर्ष कर रहा है। ये अत्यंत भयंकर हैं। इनकी शक्ति भी अत्यधिक है, परंतु संघर्ष करने वाला मानव
अथवा जीव कमज़ोर हो गया है। ऐसे कमज़ोर जीव का शक्तिशाली गुणों के साथ संघर्ष करते समय उसे कोई न कोई ज्ञान कवच अथवा आध्यात्मिक कवच अथवा वैराग्य कवच धारण करना पड़ता है। గొడుగును చేతిని అందుకు ఉంచుకున్నటువంటి వానికి ఎండ బాధ ఉండదు. చెప్పులు ధరించినటువంటి వానికి ముండ్ల బాధ ఉండదు. కవచములు ధరించినటువంటి వారికి ఎదురువారు వేసేటువంటి అస్త్రములను ఏమాత్రం కూడాను బాధించవు. కనుకనే అర్జున, నీవు ఇందులో ఏదైనా ఒక కవచాన్ని నీవు ధరించాలి. నీకు ఈ పరిస్థితి యందు జ్ఞాన కవచము అత్యవసరము. కనుకనే సాంఖ్యయోగమునందు ఈ జ్ఞాన కవచాన్ని మొట్టమొదట అతనికి అందించాడు. जिसके हाथ में छाता होता है उसे धूप का कष्ट नहीं होता है। चप्पल पहने हुए व्यक्ति को कांटों का कष्ट नहीं होता है। कवच धारण करने वाले को सामने वाले के अस्त्रों का कष्ट नहीं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इनमें से किसी एक कवच को धारण करना है। इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए ज्ञान कवच अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग में ज्ञान कवच प्रदान किया। నీ అభిమాన మమకారములు నిన్న నేడు వచ్చినటువంటివి కాదు. ఎన్ని ఎన్ని జన్మల నుండి నిన్ను వెంటాడుతున్నది. వీని యొక్క బాధ ఎప్పటికి నివారణ అవుతుందని కూడాను నీవు గుర్తించలేవు. కనుక ఇది నివారణ నిమిత్తమై నీవు యోచించనక్కరలేదు. వాటి బారి నుండి తప్పించుకునేటువంటి ఉపాయం నీవు వెతుక్కోమన్నాడు. श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ये अभिमान और ममत्व कल या आज के आए हुए नहीं हैं। ये कई जन्मों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इनसे उत्पन्न कष्ट कब निवारण होने वाला है यह तुम नहीं जान सकते हो। अतः इनके निवारण के बारे में तुम्हें विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। इनके चंगुल से बचने का मार्ग ढूंढो। రోగం వచ్చిన తర్వాత వైద్యుని నిమిత్తమై ఔషధముల నిమిత్తమై మనం ప్రాకులాడటం ఇది సహజం. రోగమునే రానివ్వకుండా చూసుకునేటువంటి ప్రయత్నము ఇది ప్రథమ ప్రయత్నం. కనుక నీవు ఈ రణరంగమందు నీవు పోరాటమునకు సిద్ధంగా ఉంటున్నావు. నీవు లౌకికమైనటువంటి కవచాన్ని ధరించావు, కానీ ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని కూడా నీవు ధరించాలి. శత్రువుల నుండి నీ దేహాన్ని రక్షించుకోవచ్చును, కానీ దేహంలో ఉండినటువంటి ఒక వైరవులను ఏ రీతిగా నీవు తప్పించుకోగలవు. కనుక వారి బారి నుండి నీవు తప్పించుకునే నిమిత్తమే జ్ఞాన కవచాన్ని ధరించుకోమన్నాడు. बीमारी के आने के बाद वैद्य के लिए और औषधियों के लिए ढूंढना सहज है, परंतु बीमारी की रोकथाम का प्रयत्न ही प्रथम प्रयत्न है। अतः तुम इस युद्ध क्षेत्र में संघर्ष के लिए तैयार हो। तुमने लौकिक कवच का धारण किया है, परंतु तुम्हें आध्यात्मिक कवच का भी धारण करना चाहिए। बाह्य शत्रुओं से तुम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हो, लेकिन शरीर में निहित शत्रुओं से तुम कैसे बच सकते हो? अतः उनसे बचने के लिए ज्ञान कवच धारण करो। బయట శత్రువులకు నీవు భయపడుతున్నావు, కానీ లోని శత్రువుల యొక్క విచారాన్ని నీవు చేయటం లేదు. లోని శత్రువులకు లొంగిపోయిన వాడు బయట రిపులను ఎట్లు పట్టగలడు. కనుక మొట్టమొదట లోని శత్రువులు నీవు జయించు. నీకు అనాది నుండి నీవు వెంటాడుతున్నాయి ఈ అహంకార మమకారములు. అహంకార మమకారములు ఉండినంత వరకు కూడాను రాగద్వేషములు తప్పినవి కాదు. ఈ రాగద్వేషములకు అహంకార మమకారములకు కర్మనే కారణం. కనుక ఈ కర్మను నీవు ఆచరించు. కర్మను సరి అయినటువంటి స్థితిలో నీవు అనుభవించు. మొట్టమొదట కర్మను నీవు అర్థం చేసుకో. बाहरी शत्रुओं से तुम डर रहे हो, परंतु भीतरी शत्रुओं के बारे में तुम विचार नहीं कर रहे हो। वशीभूत है जो भीतरी शत्रुओं का, कैसे हरा सके बाहरी शत्रुओं को। अतः सबसे पहले भीतरी शत्रुओं को तुम पराजित करो। अनादिकाल से यह अहंकार और ममत्व तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अहंकार और ममत्व के रहने तक ये राग द्वेष तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। इन राग द्वेष, अहंकार और ममत्व का कारण कर्म ही हैं। तुम कर्मों का आचरण करो,
इन कर्मों का अनुभव सही ढंग से करो। सबसे पहले कर्मों को समझो। దీనిని భాగవతం నందు కూడాను కర్మమున పుట్టు జంతువు కర్మములను వృద్ధి పొంది కర్మమును చను కర్మమి నరునకు దైవము కర్మమి సుఖ దుఃఖములకు కారణమిలలో ఉన్నాడు. నీ సుఖమునకు దుఃఖమునకు, నీ పాపమునకు పుణ్యమునకు, నీ ఆనందమునకు లేక ఆహ్లాదమునకు, నీ లాభ నష్టములకు కూడాను కర్మనే కారణం. అసలు నీ జన్మమునకే కర్మ కారణం అన్నారు. కనుక కర్మను ఏదో ఒక అలక్ష్యంగా నీవు చూడవద్దు. నీ జీవితం అంతా కూడాను కర్మతోనే ముడిపడి ఉంటున్నది. కర్మను గుర్తించి కర్మను ఆచరించు. ఏదో ఇది చిన్నది కదా అని నీవు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క అలక్ష్యం చేయకు. చిన్నదిగా ప్రారంభమై महावृक्षंगा तैयार कावच्चु। भागवत में कहा गया है कि कर्मों में है यह जंतु जन्मता, बढ़कर कर्मों में वह मरता। कर्म है ईश्वर इस मानव का, कर्म ही कारण है सुख दुखों का। तुम्हारे सुखों और दुखों, पापों और पुण्यों, आनंद और आह्लाद तथा लाभ और हानि, सबके लिए कर्म ही कारण है। यथार्थ में कर्म ही तुम्हारे जन्म का कारण है। इसलिए तुम इस कर्म को उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो। तुम्हारा पूरा जीवन कर्म से ही बंधा हुआ है। कर्म से अवगत होकर कर्म करो। इसे बिल्कुल छोटा मानकर उपेक्षा मत करो। यह छोटे से स्तर पर आरंभ होकर महावृक्ष का रूप धारण कर सकता है। चित्त चोरा यशोदा के बार, नवनीत चोर गोपाल। 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 गोपाल 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 गोवर्धन कर गोपाल। चोरा यशोदा के बार, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बार, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बार, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बार, नवनीत चोर चोरा यशोदा के बार, नवनीत चोर गोपाल। चित्त चोरा यशोदा के बार,
चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम चमत्कार से संस्कार के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। आज प्रस्तुत कथा का शीर्षक है दिव्यता का परिचय पत्र। यदि भगवान की कृपा हो तो वे हमारे जीवन के संकट के क्षणों में सुरक्षा देकर हमें अपने प्रेम का प्रमाण देते हैं। अफ्रीका के युगांडा नामक स्थान से डॉक्टर किशन गढ़िया सन 1960 में पहली बार पुट्टपर्ती आए और उनका तब बाबा से ऐसा संबंध बना कि उनमें सदा के लिए बाबा के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तब से लगभग 50 वर्षों तक उन्हें बाबा की कृपा के कई अनुपम प्रमाण मिलते रहे। उन्हीं में से एक वृत्तांत यहां प्रस्तुत है। सन 1965 में डॉक्टर किशन गढ़िया प्रशांति निलयम आए। प्रशांति निलयम में उनके प्रवास के अंतिम दिन दर्शन के समय बाबा सीधे उनके पास आए, अपना एक विजिटिंग कार्ड सृजित करके उन्हें दिया और कहा कि हर समय इसे अपने बटुए में रखें। श्रद्धा, कृतज्ञता और भगवान के आशीर्वाद से भरा मन लिए डॉक्टर गढ़िया युगांडा लौट गए। अगले 7 वर्षों में अफ्रीका की परिस्थिति अशांत होती चली गई। वहां राजनीतिक उथल पुथल थी एवं विशेषतः भारतीय लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया था। उन्हीं दिनों वे रोज की तरह एक दिन सुबह अपने काम के लिए घर से निकले, मगर रास्ते में एक सिपाही ने अचानक उनकी कार रोक ली और तलाशी लेने लगा। तलाशी में कुछ नहीं मिला, मगर वो सिपाही उनकी कार में बैठ गया और उन्हें कार चलाने का आदेश दिया। डॉक्टर किशन ने सोचा कि शायद कोई बीमार है जिसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन कुछ मील दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह देखकर सिपाही ने कार रोकने को कहा। वहां चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां थीं। किसी अनहोनी की आशंका लिए डॉक्टर कार से उतर गए और देखने लगे कि आसपास शायद कहीं कोई हो। एकाएक उस सिपाही ने गोलियों से भरी मशीन गन उन पर तान दी और पूछा कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है। डर से कांपते हुए डॉक्टर किशन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सिपाही ने कहा, तुम लोगों ने हम पर बहुत राज कर लिया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि उन पर तो अंग्रेज राज कर रहे हैं, वे तो वास्तव में दूर दराज के गांव में जाकर सेवा करते हैं। लेकिन सिपाही ने उनकी एक न सुनी। डॉक्टर समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, अतः उन्होंने अपने बच्चों को देखने की अंतिम इच्छा व्यक्त की, मगर सिपाही ने सीधे इनकार कर दिया। तभी एक टैक्सी वहां आकर रुकी। ड्राइवर ने सिपाही से पूछा कि वो डॉक्टर को क्यों परेशान कर रहा है। निर्दयी सिपाही ने उसे भी धमकाकर कहा, जान प्यारी हो तो तुरंत यहां से चले जाओ। टैक्सी ड्राइवर सीधा वहां की सेना के स्थानीय प्रमुख के पास जा पहुंचा और बताया कि कैसे एक दयावान डॉक्टर के प्राणों पर
संकट आन पड़ा है। अंततः सिपाही ने कहा, अब तुम्हारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो तुम एक सिगरेट पी सकते हो या फिर अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि बस अब मैं गोली चलाने वाला हूं। डॉक्टर किशन को बाबा का दिया हुआ वो विजिटिंग कार्ड याद आ गया जिसमें बाबा की फोटो थी। डॉक्टर किशन ने तुरंत अपने बटुए से वो कार्ड निकाला और बाबा को आर्त हृदय से पुकार उठे। अचानक सिपाही के मन में कुछ विचार आया और उसने रुखाई से पूछा, तुम्हारा भगवान कौन है? विजिटिंग कार्ड दिखाकर डॉक्टर बोले, साईं बाबा। सिपाही ने ऊंची आवाज में कार्ड लेकर पढ़ा, भगवान श्री सत्य साईं बाबा, प्रशांति निलयम, पेनुकोंडा ताल्लुक, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, इंडिया। इसके बाद न जाने उसे कुछ हुआ, उसने डॉक्टर को देखा, कार्ड वापस दिया और बोला, जाओ, और खुद भी वहां से चला गया। डॉक्टर स्तब्ध और अवाक थे। उन्होंने सोचा कि क्या यह सचमुच हुआ है? सिपाही ने उन्हें अचानक क्यों बख्श दिया? वे इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहां सेना की एक जीप उनकी रक्षा करने आ पहुंची। इस घटना के तुरंत बाद डॉक्टर किशन ने अफ्रीका हमेशा के लिए छोड़ दिया और सपरिवार इंग्लैंड में जा बसे। कई वर्षों के बाद सन 2003 में त्रयी वृंदावन बेंगलुरु में भगवान बाबा ने डॉक्टर किशन से छात्रों के सामने कुछ बोलने को कहा। भगवान बाबा की अनुमति से डॉक्टर किशन ने यह घटना सुनाई। डॉक्टर जब बोल चुके तो आगे की कहानी बाबा ने स्वयं सुनाते हुए बताया कि वो निर्दयी सिपाही कई मासूम और निर्दोष लोगों को मार चुका था। लेकिन उस दिन बाबा के कार्ड पर नजर पड़ते ही उसका मन बदल गया। स्वामी बोले, मैंने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। तब से वो सिपाही मन ही मन बाबा की एक फोटो पाने के लिए तरसता रहा और अंततः युगांडा की राजधानी कंपाला में जाकर उसे बाबा की एक फोटो मिली। जैसे ही उसे फोटो मिली तो बंदूक छोड़कर उसने एक नया जीवन शुरू किया। इसके बाद वो नियमित रूप से बाबा से प्रार्थना करने लगा। समय के साथ बाबा के प्रति उसकी भक्ति गहन होती चली गई और एक दिन प्रार्थना करते वक्त उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने ये देखने के लिए आंखें खोली कि कौन हंस रहा है, तो वो ये देखकर दंग रह गया कि बाबा उसके कमरे में लगी फोटो में से चलते हुए बाहर निकल आए। उसके ठीक सामने खड़े बाबा ने कहा, मैं ही हंस रहा था, पुटपर्ती आओ। और अगले ही पल बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन को प्यासा वो सिपाही किसी तरह पुटपर्ती आ पहुंचा और बाबा को सामने से भक्तों को दर्शन देते हुए देखकर वो गदगद हो उठा। अभी वो उस अनुभूति में खोया हुआ ही था कि बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए। बाबा ने प्रेम से उसे अपना एक वस्त्र दिया और आशीर्वाद से सराबोर कर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। बाबा का प्रेम हमारे हृदय को बदल देता है। केवल एक दर्शन व उपस्थिति मात्र से बिना कुछ कहे ही वे हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित कर देते हैं, इसे हमारी अल्प बुद्धि भला कैसे समझ पाएगी। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे चमत्कार से संस्कार के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी। आज प्रस्तुत कथा का शीर्षक था दिव्यता का परिचय पत्र। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है।
उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।